we come to you from Allahabad University, once known as the iconic Oxford of the East. This is the university which has given the country around 4 prime ministers, several other chief ministers, some iconic politicians, and also a city which is, has got various political affiliations, a sangam really of sorts here of various political parties who have come together. Today, here at the University Union Hall, we are joined by several students to try and understand and talk about something which is the heart of elections here in UP. Talk about youth, talk about young voters, jobs and employment. And can perhaps UP really rise above the politics of identity and talk and vote for actually leaders who are talking about Vikas, talking about development, a word which many are saying has been abused clearly by all political parties. I'm going to start by somebody here who's from the Samajwadi Party. सर मुझे पहले ये बताएं, आपकी पार्टी से क्या काम हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, आपको क्या लगता है क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं? समाजवादी पार्टी ने तो वो काम किया है जी, छात्र भवन पे, ऐतिहासिक छात्र भवन पे हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं। इस छात्र भवन पे ताले लगे हुए थे और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से हम लोग की सरकार बनी तभी से ये बहाल हुए, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही हम लोग की सरकार बनी तो स्टूडेंट के लिए उन्होंने बसें चला दी जो फ्री ऑफ कास्ट। सबसे पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनाया समाजवादी छात्र सभा ने, महिला छात्र बेसिकली वुमेन प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि हमारी पूरी जितनी जनता बैठी है उसमें मैं अकेली महिला क्यों हूँ यहाँ पर? नहीं, ऐसा इसलिए रहा कि जो ऋचा सिंह यहाँ पे अध्यक्ष बनी है, हाँ। वो इस समय चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, तो यूथ को अगर सबसे ऋचा सिंह कांग्रेस से लड़ रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी से थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें टिकट दिया, चुनाव लड़नी है। हो सकता है ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ छात्राओं का अगर दिन में डिबेट करती तो यहाँ तो हमें लगता है तो पूरी जगह भर जाती। दिन में नोट करने की बात यह है कि दिन में डिबेट करती तो छात्राएं आती, शाम के समय छात्राएं निकलने से काफी डरती हैं। मुझे बताएं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर इशू है, लेकिन उसके अलावा क्या बेसिक मुद्दे हैं जो इस समय यूथ अपने दिमाग में रख रहा है वोट करते वक्त? बेसिक मुद्दे जो है यहाँ के शिक्षा का स्तर जो एकदम गिरता जा रहा है उसको सुधारना है, और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं और कुछ करते नहीं है। जैसा कि अभी माननीय महोदय जी ने बताया कि शाम की वजह से महिलाएं नहीं आ रही हैं, और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री की वाइफ उस दिन आई थी और पब्लिक मीटिंग में लोग बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है आप लोगों से, आप लोग शांत रहने, भैया जी से शिकायत कर दूंगी। तो इतना डिफिकल्ट इशू है इस सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है। आई ऑल्सो हैव विद मी समबडी हु हैज बीन अ फॉर्मर स्टूडेंट and is now working. You have studied from Allahabad University. What do you do now? Well, I'm a banker by profession, and right now I am posted in Allahabad only, luckily. So perhaps you're the best person to tell us whether or not there has been any change or not. So in all these years, which year did you pass out in? Yeah, I was pass out in 2010 from here. The change, there is nothing we can say that a single person can bring a change right now. The thing is that, according to my opinion, the mother of all problems is population. So as you know that UP is most populated state here. So there are No, that's a larger issue. I'm trying to talk about vis-a-vis 5 years ago to 5 years now. Do you see any substantial change in the university? Yes, of course there are changes in the university. As it has got the recognition from the central also. So there are things which have changed through center only, not by the state. Not by the state. So clearly which party you're leaning with, I have to know. I'm also joined by somebody who's a very famous RJ over here. Tell me, I want to understand, you interact with people, young people a lot. When we talk to them, though on camera, वो कैमरा के सामने तो आके बोलते हैं कि जी हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हम यूथ के लिए काम करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करेंगे, लेकिन बाद में जाके मेरा एक सेंस ये बना है कि वोटिंग बूथ के अंदर जाके जाति और रिलीजन के नाम पर ही वोट करते हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो उनको भी नहीं पता है। जाति और रिलीजन ये दोनों ही चीज़ उनके दिमाग में है ही नहीं। अभी तो उनको अपना फोकस ही नहीं क्लियर है। यहाँ के जो यंग वोटर्स हैं जो पहली बार इस बार वोट करने वाले थे, उनको यही नहीं पता है कि वोटिंग उनको करना है तो क्यों करना है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है, इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है। उसका प्रॉब्लम ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिससे मैंने इंटरेक्ट किया, बात करी, उनमें से मैक्सिमम के वोटर आईडी कार्ड्स नहीं है। उनको अगर वोटर आईडी कार्ड्स नहीं है तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, जिस गूगल पे लोग सर्च कर सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं। वो तक नहीं करते हैं क्योंकि उनको शायद वो चीज़ पता नहीं है, अवेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है चीज़ों में, जिस वजह से वो कास्टिज्म तक तो पहुंच ही नहीं पाते। शायद इंस्पिरेशन भी नहीं है कि लोग
पॉलिटिशियन नहीं, एक्चुअली क्या क्या फेथ नहीं है पॉलिटिशियंस में? नहीं, फेथ तो है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि एक बहुत पुरानी लाइन है भारतेंदु हरीशचंद्र जी की कि हम हिंदुस्तानी काठियावाड़ी रेल के डिब्बे हैं, जब तक हमें इंजन नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं खड़े रहेंगे। सो जो यूथ है वो एग्जैक्टली जो यूपी का है उसको एक ऐसे इंजन की हमेशा जरूरत रहती है जो कहीं ना कहीं पुश। इस पर मैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो वोटिंग लाइन्स बंद हुई हैं उसके बाद करीब 60%, 59-69%, 60% तक आया है, अभी गया है, जो बहुत ही ज्यादा नंबर नहीं है एक तरह से, पिछले साल जैसा ही है। और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ सर ऐसा क्यों है, हालांकि मैं पहले स्टूडेंट से शुरुआत करती हूँ सर, ऐसा क्यों है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एक समय में इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री देता था, इतने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर देता था, अभी पिछले कुछ सालों से एक तरह से कहा जा सकता है कि इट्स जस्ट फॉस्टरिंग पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स, सिर्फ यही हो रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा पढ़ाई के नाम पर, इसके अलावा जॉब्स के नाम पर कुछ खास नहीं हो पाया। देखिए, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ की मैं बात बताऊँगा आपको क्लियर। देखिए, दोनों को कंपेयर अगर आप करेंगे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, तो जो बाहर की चीजें हैं वो समाजवादी पार्टी के अंडर में आती है। तो अगर गर्ल्स, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जॉब्स का आप पार्टीज लेकर आए हैं, तो मुझे जॉब्स के बारे में बताएं। जॉब्स के ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि जो हम लोग के वीसी हैं, 2005 के बाद से सेंट्रल हो गई यूनिवर्सिटी, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई, तो जो यहाँ के वीसी हैं, पिछले मतलब हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, जो मतलब एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो यहाँ के थे वो चीटिंग करा रहे थे, इस बार भी उन्होंने उन्हीं को दे दिया था। तो मतलब अपने जो खास पर्सनल, पक्का आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है कि इधर उधर करने का। मैं स्टूडेंट से इसके बारे में जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो जितने लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स भी बनते हैं, ये सब अपने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को एक बात के बाद केटर करना शुरू कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स की बात कभी पहुंच नहीं पाती है? बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जब जैसे ही ये लोग क्या बोलते हैं कि डर के मत बताएं, कोई बात नहीं, जैसे मतलब जैसे ये लोग जीत जाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। पिछले मतलब हम 3 साल से यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, 3 साल में पिछले 2 साल जो दोनों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, दोनों कोई, हमको लगता है पहले वाले में तो बिल्कुल हम झांकने तक नहीं है, और दूसरे वाले में तो केवल एक व्यवस्था की है कि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए फ्री बस सेवा के अलावा और कोई काम नहीं किया गया यहाँ पे। और मुझे बताइए, पिछले 3 सालों में कितनी बार प्लेसमेंट एजेंसीज आई यहाँ? बिल्कुल, वो तो कई सालों से नहीं आ रही है। कितने साल हो गए प्लेसमेंट? हमको लगता है कि जब से सेंटर 3 साल से, तब से नहीं आ पता है। देखिए, आपने बात की विश्वविद्यालय में जॉब और प्लेसमेंट की, तो मैं आपको बताऊं कि इस विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय बने इसको लगभग 12 साल हो चुके हैं आज। यहाँ पर प्लेसमेंट की आज तक कोई बात हुई है। मैं इसका श्रेय सीधे मैं क्या कहूँ, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसलिए जो सत्तासीन पार्टी में नाम नहीं लूंगा, फिर भी जब से हमारे कुलपति महोदय आए हैं तब से यहाँ की जो, और एक जो आपने कभी कही कि शिक्षा का स्तर गिरने का एकमात्र कारण हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन में भ्रष्टाचार का है। मैं इस किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हो, आप खुद समझते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। कई लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक जो विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर है, इस वजह से ये एलिगेशंस हैं। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, समय हाँ बताएं। सोनल जी, हम ये कहेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है इनके केंद्र के, उनकी स्मृति ईरानी जी की डिग्री फर्जी निकल गई, तो ये तो हमारे विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य रहा। फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप कर रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर आप बताएं यहाँ पर कि बिना पार्टी का नाम लिए हम इसमें मुद्दों की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर आके मैं जितने लोगों से बात करती हूँ वो बोलते हैं भाई इस पार्टी ने वो नहीं करा, उस पार्टी ने वो नहीं करा। क्या वोटर भी जागरूक है? क्या वोटर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि लोग जो है, जो पढ़ा लिखा हमारा यूथ है, वो जातिवाद के उससे ऊपर उठ के अपनी प्रोग्रेशन के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करे, उस पर वोट करे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से मैं तमाम राजनीतिक दलों को बताना चाहता हूँ, वोटर बहुत ही जानदार, बहुत ही सीरियसली और साइलेंट होकर के वो देखता है कौन क्या कर रहा है। जब अपना वक्त आता है तो वोटर काम करता है। तो मैं तो एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज की स्थिति है ना, हम लोग नौजवान को जो ये कर रहे हैं साहब, एजुकेशन नहीं है या जॉब नहीं है, इसमें कोई एक बहुत बड़ा गलती हम लोगों से हो रही है। हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं लोगों को, जॉब ना दे करके और आगे कोई रास्ता ना बता करके। हम तो बहुत शर्म के साथ आपके साथ कहना चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल हैं
वो सारी राजनीतिक दल ऐसे ही काम कर रहे हैं. So we've the only thing which everybody seems to be agreeing here at the moment is that there is not one particular party that they have felt good about. They come out to say that they have been disappointed, especially the youth here of Allahabad University, disappointed with all political parties. We'll take a break on that note. When we come back, we'll talk more specifically on the issue of jobs. What kind of jobs are coming in? Why are they not coming in? And at a time when the government is coming out, the state government here is talking about laptops and mobile phones, how is it that it's not converting into employment? We'll slip into a break. There's more on the other side.